Good morning, students. Today I shall explain you the chapter Pride and Prejudice written by Jane Austen. This is very interesting chapter that is written by Jane Austen in 1813. She enjoyed setting plays with her siblings and writing poems and stories. Pride and Prejudice was the first of her 6 famous novels. So let's start today's topic and enjoy the story. Dear students, can you identify this picture? Can you tell me whose picture is this? No? Don't worry. I will explain you. This picture, this image is of Jane Austen, whose novel you are reading. जिसका नोवेल आप पढ़ रहे हैं वो इन्हीं ऑथर के द्वारा लिखा हुआ है. दिस फोटो is belong to Jane Austen, who is the author of this chapter. Jane Austen, at the age of only 21, writing this novel. So she is very intelligent lady and a famous English author of all time. Jane Austen was born on 16 December 1775 and died 18 July 1817. Was an English novelist known primarily for her 6 major novels. जो जॉन ऑस्टन है बेटा वो 16 दिसंबर 1775 को पैदा हुई और 18 जुलाई 1817 को उनकी डेथ हो गई. वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी. नोन प्राइमरली फॉर हर 6 मेजर नोवेल्स, जो अपने 6 मेजर नोवेल्स के लिए जानी जाती हैं. विच इंटरप्टेड critique and comment upon the British landed gentry at the end of the 18th century. Austen's plots often explore the dependence of women on marriage in the pursuit of favorable social standing and economic security. Her works critique the novels of sensibility of the second half of the 18th century and are part of the transition of 19th century literary realism. Her use of biting irony along with her realism, humor and social commentary have long earned her acclaim among critics, scholars and popular audience alike. With the publication of Sense and Sensibility in 1811, इनका एक नोवेल का नेम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो 1811 को पब्लिश हुआ. प्राइड एंड प्रेजुडाइस, दैट इज इन योर स्टोरी, इट इज़ पब्लिश्ड इन 1813. मैन्सफील्ड पार्क 1814 एंड ईमा in 1816. She achieved success as a published writer. She wrote 2 other novels, Northanger Abbey and Persuasion, both published posthumously in 1818, and began another eventually titled Sanditon, but died before its completion. मीन्स ये जो 2 नोवेल्स थे इनके कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई. ये पब्लिश्ड हुए थे 1818 में एंड शी वॉज डाइड इन 1817. शी आल्सो लेफ्ट बिहाइंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ जुवेनिल राइटिंग्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट. उन्होंने 3 वॉल्यूम्स दिए थे राइटिंग में, मैन्यूस्क्रिप्ट में. द शॉर्ट एपिस्टोलरी novel Lady Susan and other unfinished novel The Watsons. एक इनका नोवेल था एपिस्टोलरी नोवेल लेडी सुसन, एंड दूसरा जो अनफिनिश्ड था मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ था, अनफिनिश्ड नोवेल
The Watsons. Her 6 full-length novels have rarely been out of print. और उनके 6 full-length novels जो थे, 6 novel थे जो पूरी तरीके से लिखे हुए थे, वो क्या नहीं हुए, प्रिंट नहीं हुए. Although they were published anonymously and brought her moderate success and little fame during her lifetime. ये पब्लिश तो हुए नोवेल, जो 6 नोवेल थे, जो बहुत ही लेंथी लिखे हुए थे, लेकिन इनसे उनको ज़्यादा फेम नहीं मिला. मतलब इन नोवेल से वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई. उनके जो उनको फेमस करने वाले जो नोवेल थे वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज़ अ रोमांटिक नोवेल एंड शी गॉट अ लॉट ऑफ फेम बाय दिस नोवेल. So she is very famous author. Now we shall discuss about the characters of this novel. There are many characters like Mr. Bennet and Mrs. Bennet. Mr. Bennet and Mrs. Bennet are husband and wife. Mr. Bennet, master of Longbourn. Longbourn is the place where they live. जो लॉन्गबर्न है उस प्लेस का नेम है, उस विलेज का नेम है जहाँ पर मिस्टर बीनेट एंड मिसेस बीनेट रहते थे. मिस्टर बीनेट इज़ वेरी सिंसियर बट मिसेस बीनेट इज़ ओनली विश वेल्दी suitors फॉर डॉटर्स. जो मिसेस बीनेट थी उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटियों की शादी बहुत ही धनवान घर में हो, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों. मिस्टर एंड मिसेस बीनेट हैव 5 डॉटर्स. मिस्टर और मिसेस बीनेट की 5 डॉटर्स थीं. जो एल्डेस्ट डॉटर हैं उनका नेम जेन था. जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी उसका नेम जेन था. सेकंड एलिजाबेथ, जिसका पैट नेम लीजी था. मीन्स जो सेकंड डॉटर है उसका नेम एलिजाबेथ है और उसको किटी के नेम से लीजी के नेम से जानते हैं इन द नोवेल में. एंड यू कंसीडर्ड, और आप ऐसा मान सकते हैं, यू कैन कंसीडर, आप ऐसा मान सकते हैं दैट एलिजाबेथ इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. कि जो एलिजाबेथ हैं वो स्टोरी की क्या हैं, प्रोटोगनिस्ट मीन्स नायिका हैं. थर्ड डॉटर नेम इज़ मैरी एंड फोर्थ डॉटर नेम इज़ कैथराइन. आई वांट टू टेल यू अबाउट मैरी. मैरी इज़ कॉल्ड बुकवॉर्म इन द नोवेल. जो आपकी स्टोरी है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, उसमें मैरी को बुकवॉर्म कहा गया है, मीन्स किताबी कीड़ा. वो मोस्टली बुक्स को स्टडी करती है. उसका मोस्टली जो टाइम है वो स्पेंड होता है बुक्स रीडिंग में, इसलिए उसको बुकवॉर्म बोला गया है. मैरी इज़ द थर्ड डॉटर ऑफ मिस्टर बीनेट एंड मिसेस बीनेट. नाउ द फोर्थ डॉटर कैथराइन. कैथराइन इज़ आल्सो नोन एज द नेम ऑफ किटी. जो उनकी फोर्थ डॉटर है, मतलब फर्स्ट डॉटर कौन थी, जेन. सेकंड डॉटर का नेम बताइए, एलिजाबेथ. एंड थर्ड डॉटर मैरी एंड फोर्थ डॉटर नेम इज़ कैथराइन एंड शी इज़ आल्सो नोन एज द नेम ऑफ किटी. उसको किटी के नेम से भी जाना जाता था. एंड लीडिया इज़ द फिफ्थ डॉटर ऑफ मिसेस बीनेट एंड शी इज़ वेरी लवेबल ऑफ हर मदर. जो लीडिया है वो 5वीं बेटी है मिसेस बीनेट की और वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा लवेबल डॉटर है. जेन एल्डेस्ट डॉटर है, जो सबसे बड़ी बेटी है जेन. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर एंड शी इज़ लवेबल ऑफ हर फादर. और वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा लवेबल है, मीन्स अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली है. कैन यू टेल मी the name of the second daughter? No? Yes. The second daughter name is Elizabeth and the eldest daughter name is Jane. तो बेटा
These are the 5 daughters of Mr. Binet. I want to repeat the name of daughters. First one is Jane. She is very beautiful. And second, Elizabeth, whose name is Lizzie at home, and she is the protagonist of the story. You can call her the heroine of the story. Third daughter name is Mary. And can you tell me the fourth daughter name? Yes, Catherine is the name of the fourth daughter. जो कैथराइन है वो फोर्थ डॉटर का नेम है. एंड कैन यू टेल मी हर पेट नेम? यस, किटी इज़ द नेम ऑफ कैथराइन. एंड फिफ्थ डॉटर नेम इज़ लीडिया. जो पांचवी बेटी है उसका नेम क्या है? लीडिया. एंड शी इज़ वेरी लवेबल ऑफ हर मदर. नाउ मिस्टर चार्ल्स बिंगले. मिस्टर चार्ल्स बिंगले हैं जो नीदरफील्ड में रहने के लिए आए हैं और उनके नेबरहुड में ही हैं. इनकी भी 2 सिस्टर्स हैं. उसमें से 1 सिस्टर इज़ मैरिड एंड 1 इज़ अनमैरिड. कैरोलिन, जिसे आप मिस बिंगले के नेम से स्टोरी में जानेंगे, वो अनमैरिड सिस्टर है. एंड मिसेस हर्ट्स जो हैं वो मैरिड हैं. अब जो चार्ल्स बिंगले हैं उनके फ्रेंड का नेम है फिट्स विलियम डार्सी. क्या नेम है? तो डू यू टेल मी अबाउट द नेम ऑफ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर चार्ल्स बिंगले? यस, मिस्टर चार्ल्स बिंगले के जो फ्रेंड हैं उनका नेम है फिट्स विलियम डार्सी. अब जो फिट्स विलियम डार्सी हैं वो चार्ल्स बिंगले से भी ज़्यादा धनवान हैं, उनसे भी ज़्यादा वेल्दी पर्सन है. और जो मिसेस बीनेट हैं वो ये चाहती हैं कि मेरे नेबरहुड में जो चार्ल्स बिंगले पर्सन जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा रईस हैं, रिच हैं, वो चाहती हैं कि उनसे मेरी बड़ी सिस्टर जेन का क्या हो जाए? मैरिज हो जाए, उनसे उसकी शादी हो जाए. जो फिट्स विलियम डार्सी जो उनके फ्रेंड हैं वो भी कुछ टाइम के लिए उनके पास रहने के लिए आए हैं और वो चार्ल्स बिंगले से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं. तो देखते हैं बेटा आगे स्टोरी में और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. अब जो यहाँ पर फिट्स विलियम डार्सी हैं उनकी एक आंट हैं, उनका नेम है लेडी कैथराइन डी बग. लेडी कैथराइन डी बग. एंड शी इज़ द पैट्रन ऑफ मिस्टर कॉलिन्स. जो मिस्टर कॉलिन हैं वो क्लर्जीमैन हैं और क्या हैं? कज़िन ऑफ मिस्टर बीनेट. वो मिस्टर बीनेट के कज़िन भी हैं. अब जो मिस्टर बीनेट के कज़िन हैं कॉलिन्स, ये ही इनकी संपत्ति के हकदार हैं. क्योंकि बेटा पहले जो एंशियंट टाइम था 17th सेंचुरी में कुछ ऐसा रूल था, कुछ ऐसे लॉ थे कि कोई भी बेटी मतलब फीमेल कैंडिडेट संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता था. तो जो मिस्टर कॉलिन्स थे वो उनके कज़िन थे मिस्टर बीनेट के, तो उनकी जो संपत्ति है वो किसको मिलेगी? मिस्टर कॉलिन्स को मिलेगी. अदर कैरेक्टर्स जो हैं स्टोरी में, आइए उनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं. जॉर्ज बिकम. जॉर्ज बिकम इज़ द ऑफिसर ऑफ मिलिट्री ऑफिसर हैं. चार्लोट ल्यूकस एलिजाबेथ फ्रेंड, ये एलिजाबेथ की फ्रेंड हैं. मिस्टर एंड मिसेस गार्डनियर, मिसेस बीनेट्स ब्रदर, मिसेस बीनेट्स ब्रदर. मिस्टर एंड मिसेस गार्डनियर जो हैं वो मिसेस बीनेट के क्या हैं? भाई हैं. जॉर्जियाना डार्सी, ये डार्सी सिस्टर हैं. जॉर्जियाना डार्सी जो हैं वो किसकी सिस्टर हैं? फिट्स विलियम डार्सी की. जो आपने यहाँ स्टडी किया था ना, फिट्स विलियम डार्सी हु इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर चार्ल्स बिंगले. जो फिट्स विलियम डार्सी जो चार्ल्स बिंगले के फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर का नेम जॉर्जियाना डार्सी है. तो नाउ बेटा आपने देखा कि कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 5 डॉटर्स हैं. मिस्टर एंड मिसेस बीनेट की जो 5 डॉटर्स हैं दे आर द मेन कैरेक्टर्स. एंड चार्ल्स बिंगले, his friend Fitzwilliam Darcy, these are also main characters of the story. Now next
Now you can see on your screen that your chapter is started. This chapter is written in a comic strip adapted from an extract of the famous novel Pride and Prejudice. ये जो चैप्टर है बेटा, ये कॉमिक स्ट्रिप में दिया हुआ है जो फेमस नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज से लिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर द मीनिंग ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज. प्राइड you can easily understand, the self respect, and prejudice a strong feeling, and you can say that an unreasonable dislike of or preference for a person or a group. Pride, you can also say that pride is in oneself, especially when it is based on one's race, gender or religion. So now the meaning of pride and prejudice is clear. Now students, ever since I will explain you the chapter. Ever since his arrival in his neighborhood, Mrs. Bennet fondly hoped that her eldest daughter Jane would attract the attention of the wealthy Mr. Bingley. जब से उनके पड़ोस में मिस्टर बिंगले, जो बहुत ही रिच पर्सन है, रहने के लिए आए हैं, मिसेस बीनेट की सबसे ज़्यादा ये इच्छा है, मीन्स उनकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन है कि उनकी एल्डेस्ट डॉटर जो है उसकी शादी किसके साथ हो जाए, मिस्टर बिंगले के साथ. मीन्स जो जेन हैं वो उनको, किसको, मिस्टर बिंगले को अट्रैक्ट करें. बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर बीनेट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस बीनेट की एल्डेस्ट सिस्टर का नेम क्या, डॉटर का नेम क्या है? यस, जेन इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर बीनेट एंड मिसेस बीनेट. एंड व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ मिसेस बीनेट? कैन यू टेल मी कि मिसेस बीनेट जो हैं उनकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या है, वो क्या चाहती हैं? Her greatest ambition is to marry her eldest daughter with Mr. Bingley. उनकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन है वो है कि उनकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी मिस्टर बिंगले के साथ हो जाए, हु वॉज वेरी रिच, जो बहुत ज़्यादा क्या हैं, रिच हैं. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर. Here's the speech of Mrs. Bennet. Well, Jane, who is it from? What is it about? What does he say? Can you tell me? What is it? What is it that is discussion topic? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या है जो डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है? Yes, बेटा, it is the letter that is seen on your screen. यह एक लेटर है जो आपकी स्क्रीन पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है इन येलो कलर. आप देख सकते हैं कि हियर इज़ अ लेटर दैट इज़ रिसीव्ड बाय जेन, जो जेन के द्वारा रिसीव किया गया है. तो जो मिसेस बीनेट हैं वो बहुत ज़्यादा ईगर हैं यह जानने के लिए कि ये किसने भेजा है, इसमें क्या लिखा हुआ है और वो क्या कहते हैं. कौन क्या कहते हैं? मिस्टर बिंगले. मीन्स ये जो लेटर है बेटा ये मिस्टर बिंगले के यहाँ से आया है, इसलिए मिसेस बीनेट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है इस लेटर के बारे में जानने के लिए. वो जैन से कहती हैं कि वो जल्दी से बताए कि इसमें क्या लिखा हुआ है. माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय मित्र, इफ़ यू आर नॉट सो कंपैशनेट एज टू डाइन टुडे विद लूसिया एंड मी. यहाँ पर जो मिस्टर बिंगले हैं उनकी 2 सिस्टर्स, जो मैंने आपको करेक्टर्स में बताई थी, उनकी 2 सिस्टर्स हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है जेन के लिए और उन्होंने कहा है
कि मेरी प्रिय फ्रेंड, आज हमें बहुत ही खुशी मिलेगी यदि तुम हमारे साथ आज डिनर पर हमारे घर आओ। We shall be in danger of hating each other for the rest of our lives for a whole days tit and tit। टेट एंड टेट का मीन्स होता है पर्सनली डिस्कशन। तो वो यहाँ कह रही हैं कि हम फेस टू फेस बैठकर मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं, और आपको आज का जो डिनर है उस पर आना है। बिटवीन टू वुमेन कैन नेवर एंड विदाउट अ क्वेरल। और एक ऐसी मीटिंग रखना चाहते हैं जो हम टू वुमेन्स के बीच में होगी और जो कभी भी किसके साथ, क्वेरल के साथ एंड नहीं होगी। मीन्स हम बैठकर बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और उसकी जो एंडिंग है वो कैसी रहेगी, फ्रेंडफुली रहेगी। कम एज सुन एज यू कैन ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस। मतलब जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिल जाए, आप इस लेटर को रिसीव कर लें, वैसे ही जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना। बिकॉज माई ब्रदर एंड द जेंटलमैन आर टू डाइन विद द ऑफिसर्स। क्योंकि मेरे भाई और उनके साथ जो जेंटलमैन है वो आज डिनर करने के लिए अपने ऑफिसर्स के साथ गए हुए हैं। मीन्स घर पर हम क्या हैं, बिल्कुल दोनों बहनें अकेले हैं। टू हियर द लेटर जेन आस्क्ड हर मदर। अब उस लेटर को पढ़कर, उस लेटर के बारे में सुनकर जेन ने अपनी मदर से पूछा, मदर मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो। मदर, जब मैं जाऊं तो कैरेज ले जा सकती हूँ। कैरेज मीन्स घोड़ा गाड़ी। क्या मैं गाड़ी से जा सकती हूँ? कैरेज चलती थी बेटा एंशिएंट टाइम में, तो क्या मैं कैरेज से जा सकती हूँ? नो माई डियर, यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक। अब जो मिसेस बीनेट हैं वो कह रही हैं कि नहीं मेरी डियर, मतलब नहीं मेरी प्यारी बच्ची, आपके लिए अच्छा होगा कि आप हॉर्स बैक पर जाएं। मीन्स घोड़े पर सवार होकर जाएं। यह सुनकर जो एलिजाबेथ हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो कहती हैं डैट वुड बी ए गुड स्कीम। यह एक अच्छा आइडिया हो सकता है, इफ़ यू आर श्योर, अगर आप निश्चित रूप से कह सकें। दे वॉन्ट सेंड हर होम, कि वो उसको घर वापस नहीं भेजेंगी। मीन्स अगर उन्होंने नाइट में ही उसको विदा कर दिया, शी ऑफ कर दिया, फिर क्या होगा, नाइट में वो अकेले घोड़े से वापस घर पर आएंगी। तो ये जो आइडिया था वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं आया। हु इज़ एलिजाबेथ? एलिजाबेथ इज़ द सेकेंड डॉटर ऑफ मिसेस बीनेट। एंड व्हाट इज़ द आइडिया दैट इज़ नॉट लाइक्ड बाई हर। और वो कौन सा आइडिया था जो उन्हें पसंद नहीं आया? मीन्स जो एलिजाबेथ हैं वो कह रही हैं, उन्होंने जो जेन से कहा है कि आप कैरेज ना ले जाएं, घोड़े पर घोड़े की घुड़सवारी करके जाएं, मतलब घोड़े पर सवार होकर जाएं, बिकॉज सी इज़ अ हॉर्स राइडर। तो आप घोड़े से जाएं। तो ये आइडिया जो है वो एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आपका प्लान है कि वो नाइट को जेन को घर पर रोक लेंगी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर वहाँ कंडीशन क्या बनेगी? मिसेस बीनेट कहती हैं, आई हैड मच रैदर गो इन द कोच। सॉरी, यहाँ पर जो जेन हैं वो कहती हैं कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं कोच को ले जाऊँ। तो मिसेस बीनेट यहाँ पर कहती हैं, बट माई डियर, लेकिन मेरी प्रिय, योर फादर कैन नॉट स्पेयर द हॉर्सेज। वो कह रही हैं कि नहीं, यहाँ पर आपके जो फादर हैं उनके पास एडवांस में कोच नहीं है और वो कोच को नहीं भेज सकते, केवल वो आपके लिए घोड़ा भेज सकते हैं। और यहाँ पर जो मिसेस बीनेट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये सोचकर। वो कहती हैं, इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट। वो सोच रही हैं, देखिए इन द पिक्चर यू कैन सी शी वॉज वेरी डिलाइटेड। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका ये प्लान है कि यदि शाम को बारिश हो जाए और पूरी रात तुम्हें कहाँ रुकना पड़े, मिस्टर बिंगले के घर रुकना पड़े। वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि बारिश हो जाए और तुम्हें वहाँ रुकना पड़े? बेटा वो ऐसा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि वो अपनी बड़ी बेटी की शादी मिस्टर बिंगले के साथ कराना चाहती हैं और एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो ये चाहती हैं कि मिस्टर बिंगले उनकी बड़ी बेटी को पसंद कर लें। तो उनका प्लान है कि शाम को बारिश हो जाए और जो मिस्टर बिंगले हैं तो उनकी दोनों सिस्टर्स उनको क्या कर लें,
घर पर रोक लें। तो आपने स्टोरी में आज इतना पढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है देखते हैं बेटा। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ लिटिल आफ्टर जेन लेफ्ट होम, थोड़ी देर के बाद जेन ने क्या किया, घर छोड़ दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट जेन इज़ गोइंग ऑन द हॉर्स बैक, जो जेन है वो घोड़े पर सवार होकर जा रही हैं और जो मिसेस बीनेट हैं वो उनको अलविदा कर रही, मीन्स उनको शी ऑफ कर रही हैं, विदा कर रही हैं। तो नाउ अ लिटिल आफ्टर जेन लेफ्ट होम, थोड़ी देर के बाद जेन ने घर छोड़ दिया। इट बिगेन टू रेन हार्ड, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जब घर छोड़ा तो उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग, और जो रेन है वो पूरी शाम चलती रही। विदाउट intermission, can you tell me what is the meaning of intermission? Without intermission? Yes, without intermission means without stopping। जो बारिश है वो बिना रुके पूरी शाम बरसती रही, बहुत तेज़ बारिश होने लगी और वो बारिश थमी नहीं। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक, और जो मिसेस बीनेट हैं वो ऐसा सोच रही हैं कि अब जो जेन है वो सर्टेनली वापस नहीं आ सकेगी। हर सिस्टर्स वर अनईजी फॉर हर, लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थीं, हु आर सिस्टर्स, एलिजाबेथ, कैथराइन, मैरी एंड लीडिया, दे आर अनईजी फॉर हर, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनका मानना था कि जेन को अकेले नहीं जाना चाहिए था और वो अपनी मदर के प्लान से सेटिस्फाइड नहीं थी। बट हर मदर वाज डिलाइटेड दैट हर प्लान हैड वर्कड सो वेल, लेकिन उनकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनका जो प्लान है वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो ऐसा क्यों सोचती थी कि उनका प्लान अच्छे से काम कर रहा है? बिकॉज शी वांटेड टू मैरी हर एल्डेस्ट डॉटर जेन विद मिस्टर बिंगले, मीन्स वो किसी भी तरीके से उस वेल्दी पर्सन मिस्टर बिंगले के साथ अपनी बड़ी बेटी का विवाह, मीन्स अपनी बड़ी बेटी की मैरिज कराना चाहती थी। इसलिए वो सोचती थी कि उनका प्लान जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो बेटा, आई होप you all understand about the today's story, and that was all. So in this story you learned about the daughters of Mr. and Mrs. Bennet and the greatest ambition of Mrs. Bennet. आपने इस चैप्टर में आज सीखा कि मिस्टर एंड मिसेस बीनेट की डॉटर्स कौन थीं और मिसेस बीनेट की ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या थी। और इस चैप्टर में आज जो मैंने आपको बताया उसमें आपने जाना कि जेन जो है वो किस पर गई हुई हैं, डिनर पर गई हुई हैं, और किसका इनविटेशन आया था, मिस्टर बिंगली की 2 सिस्टर्स का। फ्रेंड्स, that is all for today, and thank you once again. I hope you all understand the story very well. I will continue with the next video with you. So thank you once again.